Good morning, students. It is class number 7 of chapter number 4, which is polynomial. In previous class, we had sorted out the doubts of the assignment which was given to you on last Saturday, right? उसको हमने सारे डाउट्स क्लियर किए थे, जो बच्चों ने डाउट पूछे थे वो क्लियर हुआ था। तो बेटा ऐसे ही आपने डाउट्स पूछते रहना है, कोई भी है डाउट्स वही बच्चा पूछेगा जो कि रोज प्रैक्टिस कर रहा होता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके डाउट्स भी आ रहे हैं, वो डाउट पूछ भी रहे हैं और बहुत अच्छे डाउट्स पूछ रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि वो बच्चा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, तभी डाउट्स देख के ही बच्चे का पता चल जाता है कि कौन बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। तो बेटा सभी ने ऐसे ही करना है। अब नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का है कि इफ वी हैव px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d be a polynomial, be a cubic polynomial and alpha, beta and gamma are the zeros of px, then sum of zeros that means alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a, ये होता है sum of zeros. Next is sum of product of zeros, that means alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a, and product of zeros that is alpha beta gamma is equal to minus d upon a. So this is the relationship between the zeros and the coefficients of a cubic polynomial. Now based on this formula we will do next exercise which is optional exercise, but ये optional जो है नाम का ही होता है, optional है, और इसमें लिखा भी है कि this is not examination point of view, but ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कई बार जो है इन एक्सरसाइज से भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए हमने जो एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको जरूर कराएंगे, ठीक है। तो इसी एक्सरसाइज को करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। ये है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? देखो क्वेश्चन नंबर 1 इज ये बेटा आपने सभी अपने नोटबुक में, जो फेयर नोटबुक है, सब में आपने रोज आपने नोट करते रहना है, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई दैट द नंबर given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each case, right? So first one is first part 2x cube plus x square minus 5x plus 2 और zeros given है 1/2, 1 and minus 2. We have to verify that these numbers 1/2, 1, minus 2 are the zeros of this cubic polynomial. हमने ये शो करना है कि ये इसके जीरोस है। तो कैसे पता चलेगा कि लेट हम ले लेते हैं p of x is equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2। इसमें आप पहले p of 1/2 रखो। What is p of 1/2? 2 into 1/2 to the cube plus 1/2 to the square minus 5 into 1/2 plus 8, right? So 2 into 1/8 plus 1/4 minus 5/2 plus 2, right? So this is 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2/1.
टेक 4 एज एलसीएम, तो 1 प्लस 1, 2 2 जा 4, 10 माइनस 10 एंड प्लस 4 2 जा 8, तो 8 10 माइनस 10 upon 4, which is 0 upon 4 again 0. That means 1 by 2 is one of the zeros of this cubic polynomial, right? तो एक तो हमने 1 by 2 चेक कर लिया. Now next one, तो यहां पे देख सकते हैं therefore 1 by 2 is the zero of p of x. नेक्स्ट अनदर वन इज, देखो अब रख रखा है 1, अब 1 रखते हैं p of 1 दैट इज 2 into 1 to the cube plus 1 to the square minus 5 into 1 plus 2. तो दिस बिकम 2 into 1 तो 2 हो जाएगा, plus 1 minus 5 plus 2, तो 5 minus 5 which is again 0. तो therefore x is equal to 1 is the zero of p of x. राइट अब एक और चेक करते हैं, क्योंकि आपने ये चेक करना है कि these three are the zeros of this polynomial. So now another one is p of minus 2. Now p of minus 2, what is p of minus 2? 2 into minus 2 to the cube minus 2 to the square 5 into minus 2 plus 2. So this is minus 8. तो माइनस 8 टू जा 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, तो 10 और 4 14 तो 16, तो माइनस 16 प्लस 16 विच इज 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 इज द जीरो ऑफ px. ठीक है, तो एक तो हमने ये चेक करना था कि these three numbers which are given alongside of this polynomial are the zeros of this polynomial. तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये zeros है, राइट, सब में जीरो आ गया तो इसका मतलब zeros है. अब आपने ये करना है कि also we have to verify the relationship between zeros and coefficient. तो अब देखते हैं. Yes it is, px is, now px is, we have px is 2x cube plus x square minus 5x plus 2. Now comparing with ax square, p of x is equal to ax square plus bx plus ax cube plus bx square plus cx plus d. So we have a is 2, b is 1, c is minus 5, d is 2. ठीक है, और वी हैव जो ये तीन नंबर्स गिवन है, दीज आर द जीरोस, तो उसको आप अल्फा बीटा गामा से करते हैं. आल्सो गिवन अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2, बीटा इज 1 एंड गामा इज minus 2. ठीक है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था, देखो सम ऑफ जीरोस, इसको वेरीफाई करके देखते हैं पहले. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका टू होता है माइनस बी अपॉन ए. तो चेक करके देख लेते हैं. अल्फा, व्हाट इज अल्फा? 1 by 2, बीटा 1 माइनस 2. ठीक है, इसका टू माइनस बी क्या है इसमें 1 अपॉन ए के लिए कितना है 2. अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं. 2 टेक एज एलसीएम, 1 प्लस 2 माइनस 4 इसका टू माइनस 1 by 2. ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस 1 by 2 इसका टू माइनस 1 by 2. तो ये तो वेरीफाई हो गया, राइट. सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया कि माइनस 1 by 2 इसका टू माइनस 1 by 2. नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, product of zeros. What is the relationship between product of zeros and coefficient? That was alpha beta gamma is equal to होता है c upon a. तो अल्फा के लिए क्या हमारे पास 1 by 2, बीटा is 1, गामा is minus 2,
इक्वल टू सी, सी क्या है हमारे पास -5 अपॉन ए इज 2, सी अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस नो सॉरी इट वाज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था ना, प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आना चाहिए ना पहले, ये थोड़ा गलत हो गया। सेकंड था हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू वो था सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा, अल्फा के लिए कितना है 1/2 इंटू बीटा इज 1 प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इज 1/2 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी व्हाट इज सी? सी है -5 अपॉन 2, तो दिस इज 1/2 -2 और -1 इक्वल टू -5 अपॉन 2। अगेन 2 टेक एज एलसीएम, 1 -4 -2 एलसीएम लिया ना आपने, तो दिस इज -5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 -2 -6 और 1 -6 -5, तो -5 अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो ये भी वेरीफाई हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आ गया हमारे पास क्या, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट जीरो तो क्या था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1, गामा इज -2 इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, सॉरी माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस डी इज -2 अपॉन ए इज 2, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू -1, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह से आपने और भी क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए अब इसमें एक लास्ट लाइन जो है इसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लीजिए आप लास्ट लाइन भी, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप देख लीजिए पूरा आपके पास, ये पूरा अब आ गया, राइट। तो ये करना आपने। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वी हैव a minus b, a and a plus b are the zeros of this polynomial, cubic polynomial, which is px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1. We have to get a and b. अभी आपने किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो नाउ कंपेयरिंग विद स्मॉल एबीसी इसमें दिए रखे हैं, तो इसलिए मैं कंपेयरिंग विद px इक्वल टू मैं कर लेता हूं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो हियर a इज व्हाट इज a, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, b क्या है इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b इज -3, c इज x का कोएफिशिएंट 1 एंड d इज अगेन 1, राइट। तो यू नो दैट सम ऑफ जीरोस, और हमारे पास ये जो गिवन है दीज आर अल्फा बीटा एंड गामा, 3 जीरोस है, राइट। तो सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका तो क्या होता है -b अपॉन ए, और इसमें तो मैंने कैपिटल ले जाए तो -b अपॉन ए। स्मॉल एबीसी इसमें गिवन थे ना, इसलिए मैंने इसको कैपिटल में यूज कर लिया, राइट, क्योंकि स्मॉल एबीसी इसके जीरोस गिवन थे। अब अल्फा इज a माइनस बी प्लस बीटा इज a प्लस गामा इज a प्लस b इज इक्वल टू -b -3 अपॉन a इज 1।
ठीक है, b से b कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ठीक है। दूसरा, अगर हम जैसे हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो उससे भी निकल जाएगा, और ज्यादा ये चाहिए कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू तो आ ही चुका है हमारे पास। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हाट आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। तो अल्फा इज द माइनस बी, बीटा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस 1 अपॉन ए के लिए भी 1 ही है, तो माइनस 1 आ गया। ए की वैल्यू तो रख दो आप, ए इज 1 माइनस बी 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी होगा, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये कितना होगा, 1 स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 1 ही है, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 1 व्हिच इज 0, तो बी भी 0 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था, क्वेश्चन वाज इफ दीज थ्री आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये बेटा मैंने असाइनमेंट में आपको डिस्कस कर दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो वही है, सेम ही है क्वेश्चन। एक में इसमें देखो 2 जीरोस दिए थे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और अदर 2 जीरोस आपने निकालना था। तो बिल्कुल जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन उसमें असाइनमेंट का जो डाउट था वो करवाया था, मैंने यही क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो वो आपने फिर एक बार दोबारा से देख लेना, अगर कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। और 5th क्वेश्चन भी आपने पहले ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को कराऊंगा, राइट, तब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।